Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Hope you had a lovely weekend, and by now you must be thinking about how this branding is being evolved and touches everybody's life every day in one way or another. People who have had who have their own businesses, after watching the BMW case that I discussed with you, Mini Cooper case that I discussed with you, you would be thinking on lines of how you could differentiate your businesses from your competition so as to make difference and increase sales and profits and make more create more value for your customers as well as your stakeholders. People who are working someplace would be thinking of how they can add value to their organization by telling their bosses how to revamp the brand in order to capitalize the market. Taking the same concept further, we now to assess how the market performs and what are the different ways and means as to assess how market behaves when we have good. What we need to do is we need to measure the brand equity in terms of how the market is behaving, and it is a multi-dimensional concept and measures quite a lot of different aspects as to how brand is gonna react and how the consumer is gonna react, what different things come into play as to shift the environment and make things either soft or difficult for the brand to carry on its operations. And it again, the ultimate value of the brand depends upon the underlying components of brand knowledge, the available brand knowledge and the desired level of knowledge that we want to give to our customers and the sources of brand equity. So underlying component of brand knowledge is the key to any brand success. If the knowledge is not there, if the people do not know what is happening, it is very difficult. इसकी मिसाल दो मिसालें आपको देता हूँ. Let's take one for example. A pilot, when he is taking off the plane and flying it around and taking either people or goods from one place to another, there are different dials and components and computers in the cockpit, and he is constantly monitoring everything. He has his eye on all of those dials and gadgets which are there in front of him in order to take that plane from point A to point B. So he needs to see how the fuel is going, what is the altimeter, what is the nav aid, is he going straight or not, because there are no roads in the air. So there are different gadgets which assist the pilot to take the plane from point A to point B. The other, so that means that not a single component is there to take you from point A to point B. Multiple components and gadgets are required to make the decision from to take you from point A to point B, and that is for the pilot to decide, and he is the one who is trained to do so. Same is the case if you look at a doctor, a cardiologist, because everyone must have had अल्लाह ना करे कि जिसका पाला नहीं पड़ा अल्लाह ना करे कि कभी पढ़े, लेकिन जिन लोगों का पढ़ा उनको मालूम होगा कि जब आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो he has multiple gadgets to assess the condition of the heart, और वो आपसे ECG भी कराएगा, EKG भी कराएगा, एंजियोग्राफी भी कराएगा, ठीक है ना, ETT भी कराएगा. मकसद
and then there are 101 different type of blood tests that he wants to be get done, and then if there are other complications like diabetes and hypertension associated, then there will be other doctors also there to assist him in order to suggest what would be the best course of action to get that patient off the bed and on the ground, walking and going home in a healthy way. तो वो जो इतनी सारी जब बातें जब होती हैं ना, तो वो जो है, अब जाहिर सी बात है, उसको वो डिसीजन लेने के लिए इन सारे टेस्ट्स की ज़रूरत होती है ताकि वो असर्टन कर सके कि डैमेज कितना हो गया और वो जो है बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है कि जो पेशेंट है वो ठीक हो जाए और अपने पैरों पे खड़ा होके घर जाए, ना कि ये कि वो जो है बिस्तरे पे पड़ा रह जाए और फिर वो अपने आखिर अंजाम को पहुंच जाए. और अगर ये सारी चीज़ें टाइमली नहीं होती हैं तो जो है क्या होता है कि आदमी जो है वो रज़ाए इलाही से कूच कर जाता है. ब्रांड का भी कुछ यही हाल है. ब्रांड इतनी जल्दी कूच तो नहीं करता, बट अगर इफ यू डू नॉट डू ऑल दीज थिंग्स in a timely fashion, the brand would die its own death because it would not remain relevant, it would not be of value to its customers or consumers. So you need to assess one side as to what consumers are thinking when buying that brand, and on the other how the market is reacting to whatever changes are being made in the brand. The first of all and the simplest is comparative method, where brand based comparative approaches, marketing based comparative approaches, and co-joint analysis are done. So these are the three different comparative methods that can be used in order to measure your brand equity, measure what market is doing. Now, brand-based approach is the marketing element under consideration is fixed, okay? Consumer response is examined based on changes in brand identification. One of the application example is blind testing. Advantage is that it isolates the value of the brand. Disadvantage is the totality of what is learned depends on how many applications are examined. अब अगर आपने पिछले जो चैप्टर्स हैं अगर उनको रीड कर लिया होगा तो हमने उसमें एक जो है ब्रांडिंग ब्रीफ में कोका कोला की कहानी है. कोका कोला ने क्या किया? कोका कोला ने एक ब्लाइंड टेस्ट रन किया बिकॉज पेप्सी वॉज फास्ट अप्रोचिंग एंड गेनिंग मार्केट शेयर. तो कोक ने ब्लाइंड टेस्ट करने शुरू कर दिया. लोगों को नहीं पता था, वो दोनों लोगों को वो फ्री सैम्पलिंग करवा रहे थे और उसमें जाके लोग क्या करते थे कि वो पीते थे और फिर बताते थे कि बेहतर टेस्ट किसका है. तो ऑफ ऑल उन्होंने जो है पूरे अमेरिका में तकरीबन ये टेस्ट किए और उन्होंने देखा कि जो है ना जो मेजॉरिटी है वो ये कहती है कि पेप्सी का टेस्ट बेहतर है, क्योंकि पेप्सी जो थी वो ज़रा मीठी थी. पीपल लाइक्ड इट and they came up with a concept called न्यू कोक. जब उन्होंने न्यू कोक लॉन्च किया या कोक का जो टेस्ट था वो उन्होंने चेंज कर दिया, इट वॉज मोर स्वीटर, पीपल रिएक्टेड एंड पीपल स्टॉप्ड बाइंग कोक. दे वर सो एंग्री दैट दे थ्रू द बॉटल्स आउट ऑन इन द ओपन कि ये हमको नहीं पीना. व्हाट इज दिस? दिस इज सम काइंड ऑफ अ जोक विद अस. बिकॉज उनके लिए कोक जो थी वो अमेरिकन, बीइंग अमेरिकन वॉज नंबर वन. नॉस्टैल्जिक एक अलग था, एक जो है ओल्डर जनरेशन के साथ कनेक्शन था. सो लाइक वो जो उनकी जो साइकोलॉजिकल फीलिंग्स थी वो जो है वो ज्यादा अटैच थी विद दिस कोका कोला रादर देन कि वो जो है वो स्विच कर लेते ब्रांड इनटू पेप्सी. तो वो जो ब्लाइंड टेस्ट था तो वो क्या हुआ कि जो है वो आइसोलेट
तो उन्होंने कर लिया, लेकिन बाकी जो है वो बाकी जो ब्रांड इक्विटी के जो कंपोनेंट्स थे उसके, वो उसमें से उन्होंने माइनस कर दिया। उसकी मिसाल इसी तरह है कि अगर आप जो है एक अदद पेंसिल है, ठीक है ना, इस पेंसिल को अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ये जो है सिर्फ ऊपर से ये गुलाई नजर आ रही है, आपको ये पूरी पेंसिल जो है वो नहीं पता चल रही कि वो कैसी है, उस पर क्या रंग है, किस, ठीक है ना। और अगर आप उसको इस तरह देखेंगे तो आप उसको समझेंगे कि आपको पता चलेगा कि ये पूरी पेंसिल क्या है और उसकी शेप क्या है, या पेन की शेप क्या है। सो ये जो है दिस इज अ बिग डिसएडवांटेज ऑफ डूइंग दिस कंपैरेटिव ब्रांड बेस्ड अप्रोच, जिसमें जो है आप ऊपर से सिर्फ देख रहे हैं और आपने सिर्फ एक एस्पेक्ट को जो है लेके आप चल पड़े हैं, ठीक है ना। सो यू डू नॉट वांट दैट। इसमें एक और चीज अगर आप देखें तो लोग जो हैं क्या करते हैं कि लोग उसको जो है ब्लाइंड टेस्ट की जगह, जो ब्रांड्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपने आप को किसी और तरीके से ना अपने कंपटीशन से बेहतर दिखाने की कोशिश भी कर रहे होते हैं एट टाइम्स। और वो जब बेहतर दिखा रहे होते हैं तो वो अपने आप को सुपीरियर किसी तरीके से शो करना शुरू कर देंगे, कि हो सकता है कि जी आप कहें कि जी सुपीरियर वॉइस क्वालिटी, वो कंपेयर तो कर रहे हैं, तो वो वहां पे जब कंपैरिजन में जब आए तो उन्होंने दो के दरमियान, जिस तरह अगर आप देख याद हो आपको तो यूफोन एंड टेलीनॉर वो टॉकिंग ऑफ सुपीरियर वॉइस क्वालिटी। हालांकि जो पीछे जो बैकबोन है वो तो पीटीसीएल की इस्तेमाल की जा रही है, विच यूफोन हैज एन एडवांटेज कि उनकी वो पेरेंट कंपनी है, लेकिन टेलीनॉर वाज सेइंग दैट दे हैव अ सुपीरियर वॉइस क्वालिटी। सो उन्होंने अपने आप को उस तरह डिफरेंशिएट करना शुरू कर दिया और बाकी एस्पेक्ट्स जो थे वो साइड पे चले गए। मार्केट बेस्ड अप्रोचेस क्या कहते हैं, द ब्रांड इज हेल्ड फिक्स्ड एंड कंज्यूमर रिस्पॉन्स इज एग्जामिन्ड बेस्ड ऑन चेंजेस इन मार्केटिंग प्रोग्राम्स। अब यहां पे जो है ब्रांड को आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आप जो डिफरेंट जो है प्रोग्राम्स हैं आप उनको देखते हैं कि वो किस तरीके से कंज्यूमर की परसेप्शन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, लोग जो हैं कितना आप में बिलीव करते हैं या आपके ब्रांड को कितना ट्रस्ट करते हैं इज द क्वेश्चन। सो व्हाट हैपेंस इज दैट यू स्टार्ट गिविंग देम प्राइस प्रीमियम्स और डिस्काउंट कूपन्स एंड यू पुट और सेल, you give them buy one get one free, and then you have different road shows whereby you get more information about the products and related products with the brand, and people are attracted, and then they fill out forms and you collect that database. Now in that respect it is easy. What happens is that when you try to decipher that data, you get into problems as to you are not sure whether it was the brand knowledge that they had which made them do what they did, or it was just something which made them, compelled them, or it was a generic knowledge about the category or the product. टाइमली जो है लोग स्विच कर जाते हैं बिकॉज जो है प्राइस प्रीमियम आपको नजर आ रहा होता है, आप ले लेते हैं, या बाय वन गेट वन फ्री होती है, लेकिन अल्टीमेटली वो आपने ली चीज थोड़ी दिनों के लिए होती है, उसके बाद आप फिर वापस जो है स्विच कर जाते हैं अपने ब्रांड की तरफ। सो वहां पे आके जो है आपके लिए एक इशू खड़ा हो जाता है कि ये जो है जब तक आप ये प्राइस जो है वो डिक्रीज करते रहेंगे तब तक लोग जो है वो ले रहे हैं, जब आपने नहीं की है या आपने सेल नहीं लगाई है या आपने कोई और उसके साथ जो है बंडल नहीं किया है, जिस तरह पेप्सी के साथ आजकल जो है वो लेज का सिलसिला चल रहा, तो वो आप जिस दिन छोड़ देंगे लेज की सेल्स जो है वो प्रॉबेबली शायद ड्रॉप हो जाए, ठीक है ना। अभी तो लोगों को ये अट्रैक्शन है कि चलो जी पेप्सी खरीदेंगे तो साथ में लेज का जो पैक है वो फ्री में मिल जाएगा।
तो वो जो है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल वुड नॉट बाय इट, एंड इट माइट बी कि दे वुड कैरी ऑन दिस this campaign. The Pepsi might just carry on this campaign and for a longer period of time, so that it becomes a habit of people that whenever they are having Pepsi, they want to have a packet of Lay's with them. जिस तरह स्टार ने आपको जो है वो स्टार वर्ल्ड या स्टार टीवी जो था, स्टार प्लस, आपको 5 साल तक बगैर किसी चार्ज के वो दिखाते रहे, and then you got so addicted you started paying to watch those soap operas that were shown on Star Plus. हर घर में जो है वो इतना चलता था कि उन्होंने आखिरकार वो केबल पे आया, डिश पे आया, सब उन्होंने जो है डिकोडर भी ले लिया, केबल भी ले ली, ताकि जो है they are not gonna miss out on those programs. So this is one of the approaches. फिर let's go to the other one, co-joint analysis. अब co-joint analysis क्या कहते हैं? This survey is based multivariate technique that enable marketers to profile the consumer decision process with respect to products and brands. It helps researchers determine the trade-offs consumer make between brand attributes. अब यहाँ पे क्या है कि लोग जो हैं इस एनालिसिस से या इस टेक्निक से वो देखते हैं कि कोई 2 या 3 या 4 या 5 जो हैं डायमेंशंस जो हैं वो ब्रांड इक्विटी की वो डिफाइन कर लेते हैं, और जब वो डिफाइन कर लेते हैं तो उसके बाद वो देखते हैं कि किसका किसके साथ रिलेशन बन रहा है, कोरिलेशन किसका है. इट कुड बी प्राइस एंड यूटिलिटी, इट कुड बी प्राइस एंड पैकेजिंग, इट कुड बी प्राइस और esteem, it could be price or occasion, or it could be utility and packaging. So in short, you are assessing what is being advertised to them and how it is being reacted to. ठीक है? You want to know, assess advertising effectiveness and brand value, analyze brand price trade-off. कितनी price elasticity है for your between the price and the brand? Is it elastic or inelastic with increase in price? आप जो है किसी एक हद तक ही वो ब्रांड को फॉलो करेंगे ना. अगर वो प्राइस जो है वो बढ़ती चली जाएगी तो देन यू वुड से कि यार उससे हायर कैटेगरी में जो ब्रांड है उसको क्यों ना लिया जाए. देखिए ना, कपड़े साफ तो सारों को चाहिए, ठीक है. सो लिविंग इन दिस सोसाइटी हम जो हैं थोड़े से प्राइस कॉन्शियस है, या शायद हम ज्यादा प्राइस कॉन्शियस है. तो हम जो है सर्फ एक्सेल भी ले लेते हैं, हम एरियल भी लेते हैं, हम ब्राइट भी लेते हैं, एक्सप्रेस भी ले लेते हैं, बोनस भी लेते हैं. लेकिन ये सारे जो लोग हैं, अब आप देख लें कि ये सारे डिफरेंट सेगमेंट्स को ये जो है डिटर्जेंट्स जो हैं वो कवर कर रहे हैं, किसी एक को नहीं कर रहे हैं. लेकिन जो लोअर एंड पे जो है ना, जो पुअर एंड मिडिल क्लास को केटर कर रहे हैं, वो अपनी क्वालिटी को बेहतर बताने के लिए अपने सारे एड्स में कंपेयर कर रहे होते हैं विद दी अदर ब्रांड्स लाइक एरियल एंड सर्फ एक्सेल. सो आपको जो है वही देखना है कि ये जो है वो ट्रेड ऑफ कहां पे है, मकसद कहां पे वो जो है ब्राइट को वो छोड़ के एरियल की तरफ चला जाएगा. ब्राइट की आप प्राइस कितनी इंक्रीज कर सकते हैं, या एक्सप्रेस की प्राइस आप कितनी इंक्रीज कर सकते हैं कि द गाय or the girl would just leave that brand and start buying Ariel or Surf Excel. या Surf Excel की और Ariel की प्राइस आप कितनी इंक्रीज कर देंगे कि they'll stop buying that brand and start buying Bright or Express. So ये जो है this is a
this is how everything works. ठीक है. So जो disadvantage है of this co-joint analysis is that it may violate consumers' expectations based on what they already know about brands. कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस है ना, वो ज़रा थोड़ी सी बीच में आड़े आ जाती हैं. You tend to infringe on their privacy and their privilege, or you try to suggest things which could be offending to your consumers. So वहाँ पे आके ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है. तो whosoever is doing this study has to be very careful as to not to disturb the feelings of the consumer, because if that happens, the consumer might shy away from the brand forever. ऐसे ही है ना, आप उसको एक्सपोज करने वाली बात हो जाएगी. आप किसी को भी एक्सपोज करेंगे तो वो आपके बारे में कोई अच्छी तो फिर ओपिनियन नहीं ना रखेगा. तो यू नीड टू बी डिस्क्रीट इन वॉट एवर यू आर डूइंग. बट आपको जो है ये भी देखना है कि जो द amount of money that you have spent on this advertising and other marketing material or supporting marketing activities, वो जो है वो वेस्ट ना हो रहा हो ना. आपकी भी प्रॉब्लम है. बट देन अगेन देर आर ways of doing things. You cannot be blunt in as you would like to be, क्योंकि आजकल जो है we live in a world or a society which is more they like more reality TV. अगर आप पाकिस्तान का फसाड देखें तो यहाँ पे जो हायर रैंकिंग है वो न्यूज़ चैनल्स की है, एंटरटेनमेंट चैनल्स की नहीं है. जो शुरू के 20-21 चैनल हैं वो सब न्यूज़ चैनल्स ही हैं, और उसके बाद जाके कहीं एंटरटेनमेंट चैनल्स आपको जो हैं वो केबल पे नजर आते हैं. जस्ट बिकॉज कि न्यूज़ चैनल्स आर रेटेड हायर, देयर इज मोर व्यूअरशिप. तो हमें जो है एक दूसरे की डर्टी लॉन्ड्री देखने में बड़ा मजा आता है. फिर वी हैव होलिस्टिक मेथड्स. इट अटेम्प्ट्स टू प्लेस एन ओवरऑल वैल्यू ऑन द ब्रांड इन आइदर एब्स्ट्रैक्ट यूटिलिटी टर्म्स और कॉन्क्रीट फाइनेंशियल टर्म्स. Net out various considerations to determine the unique contribution of the brand, and it has residual approaches and valuation approaches. अब क्या है कि आप एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में ब्रांड की यूटिलिटी देख सकते हैं या फाइनेंशियल टर्म्स में आप बात कर सकते हैं. तो जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स ब्रांड वो आपको जो है वो आप असेस करने की कोशिश करते हैं कि, और जो है ना उनको राउंड ऑफ करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज वर्किंग बेस्ट फॉर द ब्रांड. इसमें जो है दो अप्रोचेस है, रेजिडुअल एंड वैल्यूएशन, जो कि अभी हम आगे करते हैं. रेजिडुअल क्या कहता है कि जी एग्जामिन्स द वैल्यू ऑफ द ब्रांड बाय सब्ट्रैक्टिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस बेस्ड ऑन फिजिकल प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स अलोन फ्रॉम द ओवरऑल ब्रांड प्रेफरेंसेस. अब रेजिडुअल में क्या हुआ कि यू आर सब्ट्रैक्टिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस बेस्ड ऑन फिजिकल प्रोडक्ट. अब इसमें जो है जो नॉन फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, जो इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द टैंजिबल एट्रीब्यूट्स. तो आप टैंजिबल और इनटैंजिबल को अलग कर लेते हैं और फिर आप उसको जो है वैल्यूएट करते हैं. तो इट इज देन कि यू ट्राई टू पुट अ फिगर टू दैट इंटैंजिबल वैल्यू के. लोग जो हैं उसको किस तरीके से देखते हैं. जैसे मैंने आपसे जो बात की वो कोक वाली थी, तो उसका जो इंटैंजिबल वैल्यू थी ना वो बहुत ज्यादा थी. और उसमें जो खूबसूरती की बात जो मैं मिस कर गया उस वक्त वो ये थी कि द कोक वॉज नॉट अवेलेबल इन द अमेरिकन एंड यूरोपियन मार्केट, रादर इन द वर्ल्ड, फॉर 3 months. दे हैड टू चेंज एवरीथिंग बैक टू द वे इट वॉज. उनको 3 महीने लगे थे. एंड फॉर 3 months देयर वॉज ओनली पेप्सी इन द मार्केट and they were having a ball of a time. जिसको कहते हैं छलांगे मार रहे थे. तो वो वही था
कि पेप्सी वाले छलांगे मार रहे थे कि 3 महीने के लिए उनका कोई कंपटीशन नहीं था और 3 महीने के लिए लोगों को पेप्सी पीना पड़ा और कोक को जो है एक माफी मांगनी पड़ी सबसे। सो यहां पे जो है आप सोच सकते हैं कि एक इतना बड़ा ब्रांड, ठीक है, द वर्ल्ड्स मोस्ट नोन ब्रांड विद ओवर $67 billion worth, तो was knocked out, though they bounced back and they put Pepsi into a lot of trouble, but for 3 months they were the kings. तो यहाँ पे भी ये हुआ कि वो बेंचमार्क उनका क्या था, द ओल्ड फॉर्मूला, ठीक है। सो वहाँ पे उनको पता चला कि यार खाली जो है टेंजिबल वैल्यू नहीं है, हमारी जो इनटेंजिबल वैल्यू वो उससे कहीं ज्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है you are, the disadvantage is that you have a static view, you have limited diagnostic value for strategic decision making, और आप जो हैं क्योंकि एक तरह से रुक जाते हैं, मकसद आपके लिए जो है यू डू नॉट नो कि जो है आप उसको किस तरीके से जो है मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है ना। मेरे लिए जो है उसकी जिस तरह यहाँ पे जो है अगर आप कोक की बात कर लें तो किसी को क्या पता कि उसका जो है उसको वो क्यों पसंद था, कोक का टेस्ट तो वाज वन, उसके he or she had some good time with the grandparents while having कोक, क्योंकि फैमिली टाइम जो है वहाँ पे एक बड़ा इशू है वेस्ट में। तो हो सकता है वो जो नॉस्टैल्जिक वैल्यू थी विद द ग्रैंड पेरेंट्स और विद द पेरेंट्स और विद द फ्रेंड्स और the last time somebody had a coke with a friend who was about to die. So आप उसको मेजर नहीं कर सकते ना, आपके लिए जो है ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। यू कैन नॉट पुट दिस फीलिंग इनटू डॉलर टर्म्स। आपको जो है चाहिए कि जो है क्या कहना चाहिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड, वो जो हम पहले जब बात कर रहे थे तो हम वो कि जी किस तरीके से, तो हम वो जो रेलेवेंस है या नॉलेज है या स्टीम है या डिफरेंशिएशन है, वो तो एक एस्पेक्ट था। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड रियली एज टू हाउ थिंग्स वुड वर्क आउट, और उससे जो है फिर उसको किस तरीके से लेके चलेंगे। फिर वैल्यूएशन अप्रोचेस। अब वैल्यूएशन अप्रोचेस में क्या है कि वी अटेम्प्ट टू प्लेस अ फाइनेंशियल वैल्यू ऑन ब्रांड इक्विटी फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस, यूजफुल इन केसेस ऑफ मर्जर्स, एक्विजिशन, ब्रांड लाइसेंसिंग, फंड रेजिंग, ब्रांड मैनेजमेंट डिसीजंस। एंड वैल्यूएशन अप्रोचेस में अकाउंटिंग बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, जनरल अप्रोचेस, इंटर ब्रांड वैल्यूएशन मेथड। अब वैल्यूएशन अप्रोच क्या जी, वैल्यूएशन अप्रोच जहां पे हम होलिस्टिक में रेजिडुअल की बात कर रहे थे, जिसमें हम देख रहे थे कि इंटैंजिबल्स जो हैं वो उनको हम किस तरीके से लेके चलेंगे और क्या होगा। अब जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको सारे को एक अदद फाइनेंशियल फिगर एलोकेट कर दें। नाउ दिस इज वेरी डिफिकल्ट, you cannot just determine how you can you just put a value to a brand and how it would be accounted for, how would it show in the accounting books। जिस तरह मैंने कुछ लेक्चर्स पहले आपसे बात की थी कि फेसबुक पेड $19 billion for WhatsApp application. How did it, they come up with this exorbitant amount of money, and how it would be accounted for in the balance sheet? What good it would do to your, stockholders or stakeholders? How would you answer your decision to the board of directors
कि किस तरीके से आप इस पे आ गए यार, इस फिगर पे आप किस तरीके से आए हैं। एक और मैसेजिंग सर्विस है लाइन के नाम से, it has been put up for sale, which is I guess 10 billion. So how did they come with such a figure? और ultimately वो जो है वो अभी जापान में they are about to sell it, which is a Korean based application, और अब वो अगर जापान में जाकर सेल हो जाती है तो ultimately that means कि this IPO would be ready for sale in the American market or at Nasdaq. ठीक है ना, वॉल स्ट्रीट पे तो नहीं आएगी लेकिन नैस्डैक पे जो है वो लिस्ट हो जाएगी और वहां पे वो सेल हो जाएगी। ओके, अब हम ये सारी बातें जब हम कर रहे हैं तो क्या मसला ये है कि हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग जो है हमारा ब्रांड में इंटरेस्टेड है। क्या हम कंपटीशन को इतना थ्रेट है कि दे वुड वांट टू बाय अस आउट। लाइक देयर वाज दिस मिनरल वाटर कंपनी which was called Ava, ठीक है, it was a big threat to Nestle, and finally they just bought them out, and now there is no Ava water in the market. Nestle just bought all of the operations and closed down their operations so that they could take over the bottled water rights to the market. There was a company called Polka which had amazing ice creams and everybody loved it, and Walls just bought them out. They took over their operations and now you do not see Polka anywhere. So एक्विजिशंस की बात है ना, फिर मर्जर्स हो जाते हैं, ठीक है ना, लाइसेंसिंग की अपॉर्चुनिटीज होती हैं, फ्रेंचाइजेस की अपॉर्चुनिटीज होती हैं, आपने एक्सपैंड करना है, यू नीड टू रेज फंड्स, वो ठीक है ना, ये सारी चीज़ों के लिए आपको पैसे दरकार हैं, लोगों का ट्रस्ट दरकार है, तो वो किसी एक फिगर पे तो आप पहुंचेंगे ना, टू बाय आउट द प्रोडक्ट, टू बाय आउट द ब्रांड. Pakistan market is a very small market in that respect. Much of what I have been telling you is happening right or left of our country. There is a lot happening in India as well now. So once you understand how you can put a price on a brand, it's only then you would be able to understand how this would work and how fruitful is this brand to your company. इसकी मिसाल कुछ ऐसे समझ लें कि इस वैल्यूएशन की ऐसे है कि आप जाते हैं मार्केट में तो आप कोई दुकान लेने लगे हैं, तो वो दुकान का किराया कहता है कि जी 10,000 रुपए है, आप कहते हैं यार ओके, वो कहता है जी इसकी जो पगड़ी है ना जी 2.5 करोड़ रुपए है. लाइक यू आर व्हाट, 2.5 करोड़ रुपए? सो वो जो 2.5 करोड़ रुपए, हाउ डिड ही कम अप विद दिस अमाउंट? कि जो पगड़ी है या जो गुडविल है इसकी वो 2.5 करोड़ रुपए है. फ्रॉम वेयर द हेल डिड ही गेट दिस फिगर? ये 2.5 करोड़ रुपए की फिगर जो है उसके पास कहां से आई? हाउ डिड ही कैलकुलेट दैट? है ना, लाहौर में शालमी हो गई, कराची में जो है जोड़िया बाजार हो गया, ठीक है ना, इसी तरह फैसलाबाद में भी कोई जगह होगी एंड सियालकोट एंड ब्ला ब्ला. हर शहर में कोई ऐसी मंडी होती है जहाँ पे जो है गुड्स आते हैं जाते हैं, और वहाँ पे जो लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं
they are sitting on a gold mine, because if they leave that place, they charge, exorbitant amount of money as goodwill. So how come, they have come up with this figure? Nobody knows. तो अकाउंटिंग बैकग्राउंड में क्या कहता है कि जी इंटेंजिबल एसेट्स आर टिपिकली लम्प्ड अंडर द हेडिंग ऑफ गुडविल एंड इंक्लूड थिंग्स such as patents, trademarks, licensing agreements, as well as softer considerations such as the skill of the management and customer relations. अब अकाउंटिंग बैकग्राउंड में जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं उनको आप गुडविल का नाम दे देते हैं, और उस गुडविल में आपके पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है, जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं and customer relations are a few things which could be terms are comes under intangible. अभी अगर आप देखें, उठा के सर्च करें गूगल पे, तो गूगल ने स्मार्टफोन जब लॉन्च किया तो उन्होंने साथ साथ जो ऑपरेशंस थे मोटरोला के, वो सारे के सारे खरीद लिए इन टर्म्स ऑफ मोबाइल्स. डू यू नो व्हाई? बिकॉज दे वांटेड टू स्क्वीज अदर मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि उनके पास पेटेंट्स थे बहुत सारे, टेक्निकल जो एडवांसेस उन्होंने की थी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस मोटरोला ने की हुई थी, और उसके पेटेंट्स उनके पास थे, उनके जो है तो राइट्स सारे उनके पास थे. और बाकी एक्सक्यूज मी, तो बाकी जो जितने मोबाइल फ़ोन कंपनीज हैं उन्होंने उनको एक लाइसेंसिंग फ़ी दी थी मोटरोला वालों को, और फिर उनका जो पेटेंट था वो इस्तेमाल किया अपनी मोबाइल्स के अंदर. तो वो जो है अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो टाइम पीरियड ख़त्म होता जाएगा, पता नहीं गूगल वो दोबारा से वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि वो टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर देगा. अभी तो जैसी भी चीज़ें हैं वो एज इट इज़ चल रही हैं. तो दैट मीन्स कि वो जो पैसे उन कंपनीज ने बचाए थे इन ऑन R&D, अब उनको जो है वो खर्चने पड़ जाएंगे. तो जो गूगल है वुड रिमेन एट द टॉप, बिकॉज उनके पास साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल जो नॉलेज है मोटरोला के पास वो बहुत ज़्यादा है. And they have been pioneers in wireless communication. ठीक, तो in an acquisition the goodwill item often includes premium paid to gain control, which in certain instances may even exceed the value of tangible and intangible assets. अब जो acquisition में है कि जो goodwill item often includes a premium paid to gain control, है ना, विच इज सर्टन इंस्टेंसेस में. तो यहाँ पे जो आप प्रीमियम देते हैं उसमें आपके टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों आ जाते हैं, और एक्विजिशन में ये बहुत ज़्यादा होता है. इसीलिए जो है वो फेसबुक और इसकी व्हाट्सएप की मैंने आपको दी, क्योंकि जो प्राइस दैट इज़ पेड इज़ एग्जॉर्बिटेंट. लेकिन ऑब्वियसली उनको कुछ समझ में आया होगा, तो उन्होंने ये इतनी बड़ी जो है ऑफर दे के उसको टेक ओवर कर लिया, इतने ज़्यादा पैसे दे के उसको टेक ओवर कर लिया. लेकिन अगर आप इन एक्चुअलिटी देखें, द नंबर ऑफ व्हाट्सएप यूजर्स टू टू द अमाउंट पेड इज ओनली $52 पर $48 पर यूजर. तो इसका मतलब ये कि कस्टमर बेस अगर आप व्हाट्सएप का देखें तो उस हिसाब से दे हैव जस्ट पेड $48 पर यूजर, एंड दे आर इंक्रीजिंग एवरी डे.
और कल जब को जो है व्हाट्सएप जो है वुड स्टार्ट चार्जिंग फॉर इट्स सर्विस, look at the amount of money that they would be getting. So ultimately all of that money which is spent in acquiring that application would be returned to Facebook, and they would still have, you know, the proprietary rights to that brand. Historical perspective क्या है कि जी रूपर्ट मर्डॉक पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, लेकिन रूपर्ट मर्डॉक इज़ वन ऑफ द द slickest and the swankiest businessman alive in the printing business. He is very shrewd, and he has this company by the name of News Corporation. और उसने जो है उसके पास बहुत काफ़ी सारे मैगजीन्स हैं जो उसके बेल्ट के अंदर आते हैं। तो उसने कहा कि इसकी जो वैल्यूएशन है ना न्यूज़ कॉरपोरेशन की, वो उन मैगजीन्स का जो, बिकॉज देयर आर बिग ब्रांड्स, उनकी आप वैल्यूएशन करें, 1984 में उसने ये कहा था, और उसको बैलेंस शीट पे शो करें, बिकॉज जब वो बैलेंस शीट पे शो होगा तो उसको पैसे रेज करने में मुश्किल नहीं होगी। बैंक्स वुड बी यू नो मोर देन हैप्पी टू पे हिम और एक्सटेंड लोन्स टू हिम इन ऑर्डर टू यू नो मेक फर्दर एक्विजिशंस और एक्सपैंड हिज बिजनेस। तो उसमें जो है ब्रिटिश फर्म्स जो हैं वो ब्रांड वैल्यू को जो है बूस्ट करने के लिए बैलेंस शीट पे लेके आती हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ब्लैंकेट अमोर्टाइजेशन प्रिंसिपल्स mean that placing a brand on the balance sheet would require amortization of that asset for up to 40 years. Such a charge would severely hamper firm profitability. As a result, firms avoid such accounting maneuvers. तो जो यूनाइटेड स्टेट्स में है वो कहते हैं कि अगर आप इसको एज एसेट शो करेंगे तो आप जो है, क्योंकि जो जिसको आप वैल्यूएट नहीं करते ना, मकसद जो नेचुरल होते ना मिनरल्स एंड सॉल्ट्स एंड, उसमें आप अमोर्टाइज करते हैं, उसकी डेप्रिसिएशन नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि जी जो ब्रांड जो भी आप शो करेंगे उसको आप 40 ईयर्स पे अमोर्टाइज करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे बड़ा फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि एक बड़ा चंक जो है आपकी प्रॉफिट का वो उसकी अमोर्टाइजेशन की तरफ चला जाएगा। तो मैं आपसे बात कर रहा था रूपर्ट मर्डॉक की। रूपर्ट मर्डॉक ने जो है वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो कि बहुत बड़ा अमेरिकन न्यूज़पेपर है, वो रूपर्ट मर्डॉक ने ख़रीद लिया था, जिस पे बहुत सारी जो है शोर मचा था कि एक ये ऑस्ट्रेलियन है जिसका जो है इस खित्ते से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कुछ नहीं है, ये जो है ये वॉल स्ट्रीट जर्नल कैसे ख़रीद सकता है। ठीक है ना। तो लेकिन उसने ख़रीद लिया और उसके ऑपरेशन सारे संभाल लिए। इसी तरह जो है आई गेस 2-3 और बड़े मैगजीन्स भी हैं जो कि रूपर्ट मर्डॉक ने ख़रीद लिए हैं। रूपर्ट मर्डॉक जो है हमेशा इंफॉर्मेशन पे चलता है, और उसके ऊपर जो है आजकल जो चार्जेस हैं वो लोगों के फ़ोन टैप करने के हैं आई गेस, और सुनने के लिए कि वो क्या बातें करते हैं, और फिर वो उनको उनसे सनसनीखेज़ ख़बरें जो हैं वो अपने अखबारों में छापता होता था, जिसकी वजह से उसको काफ़ी फ़ायदा था। He was making big money out of it. तो अब जो है because everybody needs to place this you know on their balance sheet so that you know they could capitalize. तो this is one of the things जो कि आपको सोचनी थी कि ये किस तरीके से होगा। और ये जो यूनाइटेड स्टेट्स वाला जो मेथड है टू वैल्यूएट दिस ब्रांड इक्विटी is you know a little too harsh, I must say, in terms of this balance sheet or goodwill to be shown on the balance sheet. अब जो देखें हर आदमी प्रॉफिट बनाना चाह रहा है ना, ब्रांड भी प्रॉफिट बनाना चाह रहा है, तो हर एक को ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। हर आदमी यही चाहता है कि ये जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिट अर्न करूं, ज़्यादा से ज़्यादा आई शुड बी ऑफ यू नो वैल्यू टू माय कस्टमर्स, एंड
it is very much required in that respect. But you need to understand that it's not every time that you would be able to do it. जो उसका जो ब्रांड का जो नाम है, जो कलर्स हैं, जो सिंबल हैं, दे कैरी अ वैल्यू टू एन एक्सटेंट, लेकिन कितनी वैल्यू है, ठीक है ना. You might be able to recognize the brand, but you may not be able to recall the brand. अगर आप कंज्यूमर्स पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, फिर क्या करेंगे? वो जो वैल्यू आप दे रहे हैं, इज इट डज इट होल्ड ट्रू? तो ये जरा सोचने की बात है, क्योंकि ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ये जरा थोड़े से डिफिकल्ट हैं समझने के लिए भी और अप्लाई करने के लिए भी. अब जो ब्रिटिश हैं वो एक तरीका अपनाते हैं, अमेरिकन अपना एक तरीका अपनाते हैं. देन majority of the people follow the British, or they have international accounting standards for evaluating brand equity. और जो लोग जो हैं उसको करते हैं, तो जापानीज हैं, उन्होंने क्या किया कि जापानीज ने भी एक अपना अकाउंटिंग सिस्टम जो है डिवाइस किया है, और वो कॉन्स्टेंटली जो है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ और अपना ब्रिटिश अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को क्रॉस चेक करते रहते हैं और उसको फाइन ट्यून करते रहते हैं. देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल एज टू कि किसका जो है क्या फॉलो करें तो वो बेस्ट प्रैक्टिस है. देयर इज़ नो सच हार्ड एंड फास्ट रूल एज अ बेस्ट प्रैक्टिस. वॉट एवर सूट्स यू, और इज़ जो आपका जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है वहाँ पे जो भी प्रैक्टिसेस जो हैं वो आर इन प्लेस, आपको वो फॉलो करने पड़ते हैं. इट इज़ नॉट दैट कि आप जो हैं रहते आप पाकिस्तान में हैं लेकिन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आप ब्रिटेन के करते हैं. अगर हम ब्रिटेन को फॉलो कर रहे हैं तो वी वुड बी दैट वुड बी ओके. अगर हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं तो देन वी हैव टू बाय द रेगुलेटिंग अथॉरिटी जो भी बताएगी तो वो हमें वो करने होंगे, ठीक है, तो ताकि प्रॉब्लम ना हो. अब जो है जनरल अप्रोचेस क्या है? इन डिटर्मिनिंग द वैल्यू ऑफ अ ब्रांड इन एन एक्विजिशन और मर्जर, फर्म्स कैन चूज फ्रॉम 3 मेन अप्रोचेस: कॉस्ट अप्रोच, मार्केट अप्रोच एंड इनकम अप्रोच. तो कॉस्ट अप्रोच क्या कहती है? कॉस्ट अप्रोच कहती है कि ब्रांड इक्विटी इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू रिप्रोड्यूस और रिप्लेस द ब्रांड. सिंपल कि आप ब्रांड इक्विटी इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू रिप्रोड्यूस और रिप्लेस द ब्रांड. आज जो है आप अगर वो ब्रांड हटा लेते हैं मार्केट से तो हाउ मच मनी वुड यू रिक्वायर टू कम बैक टू दैट सेम लेवल वेयर दिस ब्रांड इज राइट नाउ. या उसकी जगह दूसरा ब्रांड लेके आना है तो आपको कितने पैसे चाहिए होंगे, कितनी टाइम एंड एफर्ट चाहिए होगा, वो सारी चीजें जो कॉस्ट है वो यू नीड टू अकाउंट दैट. फिर मार्केट अप्रोच क्या है? द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू बी डिराइव्ड बाय द ओनर ऑफ द एसेट. मार्केट अप्रोच क्या है? यू नीड टू फाइंड आउट इट इज सेम एज फाइंडिंग आउट नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ब्रांड, ठीक है ना. तो आप नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो किस तरह फाइंड आउट करते हैं ऑफ एन एसेट. तो ये जो है यहाँ पे भी आपको जो है देखना होगा कि ये जो ब्रांड इक्विटी है उसके लिए जो प्रेजेंट वैल्यू है ऑफ द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, आप उसको देखते हुए आप वो निकालेंगे और आप देखेंगे कि वो जो है अप्रोच कैसे फिट होती है. फिर इनकम अप्रोच क्या है? द डिस्काउंटेड फ्यूचर कैश फ्लोज फ्रॉम द फ्यूचर अर्निंग स्ट्रीम फॉर द ब्रांड. कि यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि फ्यूचर में क्या कैश फ्लोज होंगे और फ्यूचर की अर्निंग जो है वो क्या होगी. तो उसमें जो डिस्काउंटेड फ्यूचर कैश फ्लो है फ्रॉम द फ्यूचर अर्निंग्स, वो जो है आपकी इनकम अप्रोच है. These are 3 very simple approaches, but then again उसमें जो है आप जो फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, you do not know. हाँ, there are ways and means of finding or predicting what the future would be like. क्योंकि आप जो है जो पिछला डेटा होता है आपके पास वो
आपको इंडिकेशंस दे रहा होता है. And then there are people who specialize in such things. They would be able to help you in predicting what future would hold for your brand. और उससे जो है you would be able to make a difference and carry out this approach, और आप जो है उसमें देख लेंगे. तो आपको जो है अपने ब्रांड के ऊपर काफ़ी सारा काम करना पड़ता है. एंड देन you need to sit down with your accountants or your finance people to understand as to how this brand equity would benefit and where it would fit. Because अब जो है जो mergers and acquisitions हो रहे हैं या उसमें जो है आपने जो पैसे इतने एक्स्ट्रा दिए हैं वो क्या शो होंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है. क्योंकि आप जो है उसकी जो नेट वैल्यू है आप उस पर तो नहीं ना ले रहे होते. आपने जाहिर सी बात है आप कुछ सोच के उसको एक्वायर कर रहे हैं उस कंपनी को. क्योंकि आप एंटिसिपेट कर रहे होते हैं कि मैं आज इसको ले लूँगा तो मैं आज से 2 साल बाद या 3 साल बाद मैं उस पर जो है इतना प्रॉफिट अर्न कर लूँगा. एक बात याद रखिए, ये सारी एक्विजिशंस तो आप कर लेते हैं, मर्जर्स भी हो जाते हैं, लेकिन क्या ये वर्कआउट करती हैं? समटाइम्स दे डू नॉट. उसमें पता ये चलता है कि आप जो है उल्टा आपको जो है वो नुकसान होने लग गया. क्योंकि आप जो है जब आप एक कंपनी को ख़रीद लेते हैं आप उसके कॉर्पोरेट कल्चर को नहीं समझ पाते. मैंने आपको बताया था कि वो जी मर्सिडीज़ एंड क्राइसलर का जो है वो एक्विजिशन मर्सिडीज़ ने कर ली, एंड देन दे हैड टू लेट गो ऑफ क्राइसलर बिकॉज वो जो 2 डिफरेंट एंटिटीज़ थे. जो जर्मन्स का काम करने का तरीका और अमेरिकन का काम करने का तरीका बहुत डिफरेंट है. फिर जो है ना कि सिर्फ वो डिफरेंट है, लैंग्वेज का भी एक प्रॉब्लम था. एंड देन वो जो विल टू लर्न वो भी नहीं था. सो इन एनी केस वो उन्होंने काफ़ी देर तो उसको लिंगर ऑन किया, बट देन फाइनली दे डिसाइडेड कि यार वी नीड टू फिनिश ऑफ दिस मैरिज ऑफ कन्वीनियंस एंड गेट ऑन विद आवर लाइव्स. सो वहाँ पे जो है ये क्वेकर वालों ने एक बड़ा अच्छा वो ड्रिंक थी जो स्नैपल के नाम से, उसको अक्वायर कर लिया. अब लाइक स्नैपल जो है वाज एवरीबडीज ड्रिंक, और क्वेकर ने आकर उसको पूरे का पूरा ब्रांड ही रिवैम्प करने की कोशिश की. तो क्या हुआ, पीपल स्टार्टेड लूजिंग इंटरेस्ट इन स्नैपल, और फिर जो है वो उनकी जो है आहिस्ता आहिस्ता पहले उन्होंने मार्केट लूज करनी शुरू की, फिर कंज्यूमर्स का ट्रस्ट लूज करना शुरू किया, और इवन जो लॉयल कस्टमर्स थे उन्होंने भी उसको जो है छोड़ दिया. तो पीछे रह क्या गया? तो इट वॉज अ टोटल लॉस फॉर क्वेकर टू बाय दैट स्नैपल बिकॉज दे डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट द ब्रांड स्टूड फॉर. एक वो जो है ब्रांड जो कि हर गली के कॉर्नर स्टोर पे जो है अवेलेबल होता था, अब आप उसको जो एक्सक्लूसिव स्टोर पे ले जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है एक आदमी जिसको आदत है कि घर से बाहर निकले और उसको वो चीज़ मिल जाए, वो क्या जाएगा इतनी दूर? एंड वुड ही रियली मेक दैट एफर्ट टू गो एंड बाय दैट ब्रांड? दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क. फिर एक कंपनी है इंटर ब्रांड, तो उन्होंने जो है नया तरीका निकाला और जो है उन्होंने उसको कहा कि दैट ब्रांड वैल्यू इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ फ्यूचर ओनरशिप. कि प्रेजेंट वैल्यू है ऑफ फ्यूचर ओनरशिप. आज आपने खरीदी तो कल को जो है उसकी क्या ओनरशिप की क्या वैल्यू होगी, ठीक है ना? तो उसमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने किया, उन्होंने ऐड की मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है, उन्होंने ऐड की फाइनेंशियल एनालिसिस के रोल ऑफ ब्रांडिंग क्या थी, फिर डिमांड एनालिसिस के ब्रांड की स्ट्रेंथ क्या है, कंपैटिटिव बेंचमार्किंग, ठीक है ना,
कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या चल रही हैं उस कैटेगरी के अंदर, हु इज़ टेकिंग एडवांटेज ऑफ whom, एंड देन ब्रांड वैल्यू कैलकुलेशन. तो ब्रांड वैल्यू कैलकुलेशन क्या है? कैलकुलेट द ब्रांड वैल्यू एज द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फोरकास्ट ब्रांड अर्निंग्स डिस्काउंटेड बाय द ब्रांड डिस्काउंट रेट. सो इंटरब्रांड ने जो है आपको एक और नया नया रोड, they highlighted a new roadmap for brand valuation, and they wanted to they said that you need to know what market you're in, what is role of your branding, financial analysis, how much you have poured in to your marketing programs, ठीक है, how much the knowledge is being given to your customers, what are the brand strengths in terms of demand, like from its competition. Then competition benchmarking, are you number one, number two in the market, so you need to know that. And then the brand value calculation, which is the net present value of the brand. So the forecast earnings discounted by the brand discount rate. So like your supply side also comes into play in this. तो ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने बीच में डाली और फिर उसके बाद की. सो अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें जो हैं इतनी मुश्किल नहीं भी हैं, बट देन अगेन मुश्किल काफ़ी हैं, बिकॉज जो you need to keep a hand on the pulse of the brand and see how things are going in the market. People think that it is a very easy job, and once we we get into this marketing, we are we can run scot free of all the duties or responsibilities. No, it's not like that. After going through this chapter, you would realize that you need to be good in numbers, and you need to be good in your finance. People who do not like finance or are running away from finance take on this marketing as a course, and finally they realize when they come into real life marketing that what they had done was wrong, because marketing is not as easy as they think it is. The finance people make your life much more miserable than it already is, because they want answers, and if you are not done your homework right, you will not be able to give them these answers. And once you are not able to satisfy them, you can forget about getting more money for your marketing programs. So you have to know your the product life cycle or the brand life cycle as to where it is right now, in order to understand how the segment is gonna react and how the competition is gonna react, and whether they would just pay for the name or they really want something in return. We do have we know that once we are talking of Sony, it's reliability. If we are talking of Intel, we are always talking of performance and stuff. And all of these brands conduct studies on their own. Like Intel is all the time conducting the study and regarding its processes to understand how much the consumer is willing to pay in order to have a computer which has Intel inside it, and how much price variation can Intel leverage in terms of price setting of that computer. So it is not very a rosy picture which I would like to paint at the moment, but it's not that bad either, because once you have made the connection with your consumers and you are you are there for them, automatically since the recall and recognition would be high, you could always expect that the customers would be ready to take on the world for you if it has to be like that, because they would stand behind their brand. The loyalty level would remain high. आपको सिर्फ यही देखना है
कि आप किस तरीके से उनको बेहतर तरीके से सर्व कर सकते हैं, ठीक है। एक दफ़ा जो है दो बैंक्स का मर्जर हुआ था अमेरिका में, वेल्स फार्गो एंड आई गेस फर्स्ट नेशनल या कुछ इस तरह, यू वुड फाइंड दैट एग्जांपल इन द बुक एज वेल। तो वो जो है वहाँ पे क्योंकि दो डिफरेंट कल्चर्स थे, एक जो था वो वाज प्योरली यू नो customer based, and the other one was more of bit of stiff neck, and they were into more into their services, that they were focusing more on the services rather than the customer service. So when they took on the other bank, and they said the business is as usual, but the customers found that it was not business as usual, or then they had to let go of that bank because it did not work out. Every day there was people were closing their accounts and moving to other banks because they were not happy. The other bank was concentrating more on its channels and other support staff, lekin they were not giving the same customer service as was expected, and people were not very happy. And once people start taking out money from the bank, it means that the bank is doomed, because it's if nobody is there to put money in the bank, then how the bank is going to survive? वो तो लोगों के पैसे के ऊपर ही तो चल रहा होता है, वो पैसे आपसे लेता है और आपको एक सर्टेन प्रॉफिट जो है वो ऑफर कर देता है, और बाकी जो है वही पैसे जो है वो बिजनेसेस को और दूसरे लोगों को वो देता है इन टर्म्स ऑफ लोन्स एंड मॉर्गेजेस, और वो उनसे जो है फिर वो पैसे कमाता है, अपना परसेंटेज रखता है और फिर बाकी जो है परसेंटेज वो आपको दे देता है। सो इट्स समथिंग लाइक दैट। तो वो जो बिज़नेस है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या इंटीग्रेसीज हैं, बेंचमार्क्स क्या हैं, किस किस्म के लोग हैं, व्हाट कॉम्पिटेंसी डू यू रिक्वायर इन ऑर्डर टू डू दिस थिंग। आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर को गौर से पढ़ लीजिएगा। यू वुड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, majority of the things I have explained. There would be a few things which I have left out, but that does not mean that they would not come into the examination. So this is a very important aspect of brand valuation that you need to study and understand. फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।